جلالی فتح مند اور پرفضل نام ہے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ میرا نام سیموئل یونس آپ سب کو حقیقت کیا ہے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ I welcome you all in this program. So میرے عزیزو، آج جو میں آپ سب کے درمیان سوال لے کر آیا ہوں وہ ہے نوجوان۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب اسلم پرویز سوترا صاحب۔ ان کا میں آپ کے ساتھ مختصر تعارف کراتا چلوں۔ سوترا صاحب نے 1980 سے اپنی سیاسی خدمت کا آغاز کیا اور یہ مسیحی جوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بوجھ رکھتے ہیں، سیاسی طور پر عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے نوجوان کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے میں سوترا صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سوترا صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں اس پروگرام میں دیا تاکہ آپ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا اقدام اٹھا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ سو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، پہلا سوال جو ہم ان سے کریں گے وہ ہے، جی سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثریت میں ہمارے مسیحی نوجوان تعلیم سے محروم ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں سیموئل یونس صاحب آپ کا نے مجھے پروگرام حقیقت میں آنے کے لیے دعوت دی۔ تو آج میں پوری کوشش کروں گا کہ پروگرام حقیقت کیا ہے میں لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں۔ جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تعلیم سے محروم کیوں ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم جو ہے وہ روپے پیسے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، تعلیم جو ہے وہ لگن سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور لگن دو جگہ پہ ہونی چاہیے۔ ایک والدین کے اندر کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے، اور دوسری اس بچے کی لگن ہونی چاہیے کہ میں نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور آنے والے وقت میں میں نے کچھ بننا ہے۔ یہاں پر جو ہماری مسیحی قوم ہے اس میں فقدان ہے کہ ہم اپنے گھر میں قیمتی سے قیمتی، بہترین سے بہترین چیزیں لانا پسند کرتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے، ان کے اخراجات پورے کرنے یا انہیں فورس کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کا رجحان بہت کم ہے تعلیم حاصل کرنے میں۔ اور پھر دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ اکثریتی طبقہ ہمارا ہے جن کے پاس وسائل نہیں، ان کے اندر جذبہ ضرور ہے، اور ان میں سے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ کم اور تھوڑے وسائل ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو ان لوگوں کی نسبت جن کے پاس وسائل ہیں زیادہ تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اور اگر یہاں پر میں نشاندہی کروں کہ جس طرح سے پہلے مسیح مذہبی ادارے جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ مسیحوں کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، آج ضرورت ہے کہ اسی جذبے اور ایمان کے ساتھ ان سب کو دوبارہ سے اس طرف آنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ چاہیں کہ مسیحی قوم کے بچے تعلیم میں آگے بڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیحی قوم کی فلاح بہبود اور ترقی کی فکر مندی ہے ان اداروں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اگر مسیحی مذہبی ادارے مسیحوں کے بچوں کو تعلیم دینے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی قوم کی یہ بدقسمتی ہے، اور ضرورت ہے کہ مسیحی مذہبی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ اپنے اسی کردار کو بچانے جس کی بدولت مسیحوں کے بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج اگر اس میں رکاوٹ آئی ہے تو ضرورت ہے کہ میں کسی ایک مشن کا نام نہیں لیتا، تمام مذہبی اداروں کو اپنے تعلیمی اداروں میں
मसीहों के बच्चों के लिए दरवाजे खोलने होंगे, वो सेंट एंथनी हो, वो कैथेड्रल हो, या लाहौर से बाहर जो हमारे तालीमी अदारे हैं, जो मिशनरी अदारों ने खोले हुए हैं, उनमें मसीहों के बच्चों को मुफ्त तालीम देने के लिए इन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सब ने सुना कि सोहतरा साहब ने तालीम के बारे में हमें बताया है कि अक्सरियत में मसीही नौजवान तालीम से क्यों महरूम हैं। मेरा दूसरा सवाल और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसीही बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी के साथ वो हुनरमंद भी नहीं है, उसके पास कोई हुनर भी नहीं है, तो इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम जो है हकीकत क्या है की मेज़बानी करते हुए आपने बड़े अहम नौजवानों के लिए इशू जो है उनको रेज़ किया है। जिस तरह से मैंने गुजारिश की कि मसीही नौजवान जो है वो तालीम से क्यों महरूम है, इसी तरह से मैं पूरी दुनिया पर अयां कर देना चाहता हूँ कि सरकारी सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में मसीही नौजवानों को जो उनका हक है मुलाजमतों का वो नहीं दिया जा रहा, और ये हक ना मिलने की वजह से वो बुरी बुरी ख्वाहिशों, बुरी बुरी आदतों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि पंजाब में 5% कोटा के तहत सरकारी तौर पर हजारों असामियां खाली पड़ी हैं जो अकलियतों के लिए मखसूस हैं, लेकिन अफसोस कि उनकी सरकार गई, फिर कई वज़ीर आला आए, लेकिन उन असामियों पर मसीहियों, हिंदुओं, सिखों किसी को भर्ती नहीं किया गया। यही एक वजह है कि मसीही नौजवान को हुकूमती सेक्टर में ना मुलाजमत मिलने का, क्योंकि हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं मसीहों को रोजगार देने के लिए। और इसी तरह आप देखें प्राइवेट सेक्टर में बहुत मुश्किलात हैं मसीहों को मुलाजमत करने के लिए। आप देखें कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया हुआ है जिसके तहत सेंट्री वर्कर भर्ती किए जाते हैं, इन यानी मसीही नौजवानों को जो बतौर सेंट्री वर्कर भर्ती किया जाता है उनको मुस्तकिल नहीं भर्ती किया जाता, उनको मुस्तकिल मुलाजमतें नहीं दी जाती, बल्कि आर्जी तौर पर, डेली बेसिस के तौर पर उन्हें भर्ती किया जाता है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के पास मसीहों की फलाह बहबूद के लिए, इनकी तरक्की के लिए कोई बेहतरीन मनसूबाबंदी नहीं। अगर मनसूबाबंदी हो तो लाखों की तादाद में पंजाब और मुल्क में जो सेंट्री वर्कर जिनके तलक से हम कह सकते हैं वसूख के साथ कि वो बगैर ग्लव्स के, बगैर मास्क के, बगैर लॉन्ग शूज के, बगैर सैनिटाइजर के, बगैर हिफाजती किट के वो फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां पर खतरनाक से खतरनाक जरासीम जो है उनका उन्हें सामना है। और नौजवान जो है वो जोहड़ में जा रहा है सफाई करने के लिए, वो गंदी नालियां साफ कर रहा है, वो अस्पताल के बाहर है, वो मोहल्ले में है, वहां पर टीबी के जरासीम है, दमे के जरासीम है, वहां से उन्हें हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, दमे के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। वो परवाह नहीं करते, वो फिर भी वफादारी के साथ जो है वो कौम की खिदमत के तौर पर अपनी मुलाजमत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया देखें कि वो लाखों नौजवानों को भर्ती करके उन्हें मुस्तकिल करने के लिए तैयार नहीं। और इसी तरह आप देखें कि हमारे पास हुनर सिखाने के लिए मजहबी अदारों ने जो ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए थे वो बहुत कम पड़ गए हैं। बहुत से अदारों ने, बड़े बड़े अदारों ने, कैथोलिक ने, दूसरे अदारों ने अपने जो प्रोग्राम थे वो बंद कर दिए हैं। और उसका असर क्या है कि आज हमारा मसीही नौजवान जो है वो
बेरोजगारी का शिकार तो है, तालीम से महरूमी का शिकार तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो गैर हुनरमंद है, यानी फील्ड में उसके पास काम करने के लिए कोई हुनर नहीं है। मेरी तमाम समाजी अदारों से अपील है कि वो मसीही बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए और फिर उनको हुनरमंद बनाने के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए अपने अदारों को फाल करें, नए अदारे डेवलप करें, ताकि मसीह नौजवान तालीम हासिल करके हुनरमंद बनकर रोजगार हासिल कर सके। और फिर सरकार से अपील है कि जितनी असामियां 5% कोटा के तहत अकलियतों के लिए खाली हैं पंजाब समेत मुल्क भर में, उन असामियों को फौरी तौर पर जो है वो पुर किया जाए। और जितने सेंट्री वर्कर पंजाब समेत मुल्क भर में भर्ती किए गए हैं, उन सब सेंट्री वर्करों को जो आरजी सेंट्री वर्कर हैं उन्हें मुस्तकिल किया जाए। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी थैंक यू सोत्रा साहब, आपने बहुत ही अपने तजर्बाकार बातों से हमारे नाजरीन तक शेयर किया कि क्या वजूहात हैं और हकीकत क्या है कि हमारे नौजवान इतनी मुश्किलात का शिकार क्यों हैं। सो मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम हकीकत क्या है को देखा, सुना और हकीकत को जाना कि हमारे नौजवान आज मुश्किलात में क्यों मुबतला है। सो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम इसमें और बेहतरी ला सकें। और मैं एक बार फिर असलम परवेज़ सोत्रा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया इस प्रोग्राम में और हमें अपनी कीमती बातों से आगाह किया। सो जाने से पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि मसीहा न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी न्यू एपिसोड इस प्रोग्राम की अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।